invited to the art workshop at Gopinathpur by Auro Kalakriti. I am grateful to them, to all the organizers. और जो ऑलरेडी श्री माँ से जुड़े हुए हैं उनके पास यूजुअली किसी ना किसी रूप में रहता है, अंगूठा हो, रिंग होता है, नहीं तो लॉकेट होता है, नहीं तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, हाँ, नहीं तो बैग पे पेंटिंग है। सो इसमें ये जो देख रहे हैं ये है मदर्स सिंबल, बट ये गोल्डन कलर में है। इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेंगे। It was a deeply enriching and a meaningful experience to facilitate these two groups. It was for the students as well as artists. So it brought about a beautiful, brought about two different dimensions, of creativity. The students were so open to new things and the spontaneity of the students, as well as the depth and the conscious exploration of the practicing artists. And what touched me most was witnessing the participants gradually move from hesitation to freedom, especially the students. So how beautifully they came up with authentic expression in their own style. And the innocence and the joy and the curiosity, it was beautiful. And of course the artists, their sensitivity and the inner awareness, it was really beautiful. The art became a space for connection with oneself, with others, and with more and to connect with our oneself within. The students responded with innocence, joy, and curiosity, while artists engaged with reflection and sensitivity and deeper awareness. The essence of workshop was not merely learning art techniques. In fact, that was not at all the point. But discovering art as a means of expression, concentration, harmony, and self-discovery. It felt less like conducting a program and more
more like connecting with all the children of the mother and Sri Aurobindo. It just felt like a kindergarten, school of kindergarten, where we all were children in the mother's garden. Yeah. So it was a very touching experience for me. The essence of this workshop was not just learning art techniques, though it was other artists had also shared their techniques of art, and I got to learn many things from them. But discovering art as a means of inner expression, that was what was the essence of this whole workshop. Discovering the harmony within, the concentration and the self-discovery of oneself through the medium of art. उसको मैंने भागवत के थ्रू शो किया है और बस उस लाइन को थोड़ा सा रिलेट करके मैंने ये मतलब थॉट कर कुछ भी रेफरेंस लेकर बनाया है और इतना तो मतलब नॉलेज नहीं है मुझे इस सावित्री पेंटिंग को लेकर। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो भी है, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। दीदी मतलब बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, सारे मतलब सब बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट है। मतलब जो जूनियर से जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी बहुत ही प्यारे हैं। मेरे सीनियर्स जो आए मेरे साथ उन्होंने भी बहुत हेल्प की है मुझे और सबको थैंक यू मेरे तरफ से। और मौका मिला तो फिर से ये वर्कशॉप होना चाहिए। मैं इस वर्कशॉप को फिर से पार्टिसिपेट करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ का जो माहौल है बहुत ही पीसफुल है। मतलब इतना पीसफुल माहौल अब तक तो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं था, बट मतलब बहुत ही अच्छा था। इतना मतलब मैं बोल भी नहीं सकती थी कितना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पर। बट जो भी हो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, सबको थैंक यू। नुआ नुआ जगह देखा इच्छा हुए तो मुझे दर्शाई कि जदि मोर पर था ताले मु उड़ी उड़ी बुली जाती। रफली सावित्री पेंटिंग करेनि काली जिते बड़े सावित्री सेकेंड टाइम पढ़िली सावित्री तो बुझी हेनी किंतु मत द आर्ट्स बॉन्डटा मत माने किसी भी भल लगे ताको मुझे कि डिवाइन पावर से पृथ्वी को अंधार लाइट आड़ को नहीं जाऊँगी से माने ये भाव माने आर्ट्स सृष्टिटा है। एटा मोर फास्ट कैंप थिला और केबे भी को आर्टिस्ट कैंप रे भाग लेनी कि सावित्री पेंटिंग करिनी। एक्सपीरियंस टा मोपे किछि नुआ थिला और सीनियर माने जो मिसी करबाटा बहुत भल लागिला। किछ म जानि माने मु जेंति के जानि छी आउरी बहुत किछि अछि जे हम जानि नि से माने जो मिसी करियो।
परिवेश गोटे थिला कि बिना प्रेशर और टाइम जଣା पड़नथला सेटा होच मेन कथा मतलब जे सेटा ही माने आर थीम थिला कि तमे केते साइलेंस रे किछि न भाबिकी किछि न बुझिकी जेति कि तो माइंड रे सेति करि परिबो सेटा ही थिला आ मते बहुत भल लागला सेटा इट टू इट्स फॉरगॉटन हाइट्स सेटा भी नहीं करथिली तो मु एठी टिके तळे डार्क कलर यूज करछि ऊपर टिके लाइट कलर यूज करछि आउ मझे जदि गोटे झील बन सेटा पूरा ह्यूमन फॉर्म को मैंने देखा ट्राई करछि तो ये सब जो डिफरेंट कलर्स अच्छी डार्क कलर तो मु आम थॉट्स जहाँ भी खुशी अच्छी राग अच्छी जहाँ भी इमोशन अच्छी ओवर थिंकिंग अच्छी जहाँ भी से सब को दर्शे आमर पास्ट भी थिला आगु फ्यूचर भी अच्छी माने आम जो जन्म हेलो ता पूर्व भी आम गोटे लाइफ थिला आम डेथ पर भी आ गोटे लाइफ आसो आउ से सब आमर किछि भी मने नाही कि आमे कोन हम जाने जे डेथ हो गयो तापर कोन हम मने नाही आउ सेति जो प्रोसेस थाए तो आमे जेहेतु डिवाइन को सहित तो देखाउथबा ना तापर तांको अंश आमे आसुथबा तो से सब किछि भी हमको मन नथाए तो आमे जब ह्यूमन फॉर्म को आसु तो ह्यूमन रो जहाँ भी लॉस अछि से सब रांधी जाऊ कारण भगवान भी यदि ह्यूमन फॉर्म आसले तो से भी से राबुथिले जहाँ भी किछि ना किछि तांकर थिला आ आमे तो सेमति नॉर्मल ह्यूमन पूरा आसछु तो किंतु से आसे भीतर आम भीतर जो एक लाइट को देखी तो मुझे देखी कि से जो हायर लेवल जो लाइट अच्छी से आम भीतर अच्छी किंतु आमे जहाँ भी इमोशंस अच्छी से बांधि रही जाऊँ से लाइट से माने अच्छी कि मो पाक आस किंतु आमे जेहेतु बहुत सारा जिन भीतर रही जाऊँ तो उठी पार तो जो स्पिरिटा उठा चेष्टा कर जो फॉरगॉटन हाइट्स माने जो सबको भूली जाइए से ऊपर को जीवा चेष्टा करछि तो सेटा मु देखिछि आ जेति के हेबाले सेति करिछि समस्त बहुत भलो करछथि किंतु मु जोडा भी करिछि ठीक अछि मते खुशी लागछि आ सावित्री पेंटिंग में पहले भी की हूँ और डिस्कशन भी मतलब उस लाइन पे डिस्कशन भी है लेकिन आज थोड़ा मुझे उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था मैं ही उतना एफर्ट नहीं दी हूँ जल्दी में खत्म कर दी मैंने मतलब लाइन थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे और माइंड थोड़ा ब्लैंक नहीं था मतलब इधर उधर तो इसलिए हमने ठीक से नहीं कर पाई लेकिन लाइन में जो था एक फोर्स है जो हम लोग मतलब हम लोग के अंदर है लेकिन हम लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं सब ऐसे फेट ह्यूमैनिटी जैसे हम लोग के काम इधर उधर ऐसे भटके हुए हैं तो अर्थ से बंधा हुए हैं जैसे वो चेन टाइप कर रही थी मैं सेम ग्रुप था राइट के तरफ जा रहे हैं और कुछ अभी भी अर्थ से मतलब बंधे हुए हैं हाँ मैं वो लाइन पढ़ लेता हूँ O force compelled, fate-driven earth-born race, O petty adventurers in an infinite world, and prisoners of a dwarf humanity, how long will you trade the circling tracks of mind? ऐसे बोला गया है कि जैसे मनुष्य जाति वो एक प्रिजनर बन के रह गया है और उसका मन ऐसे घूम रहा है एक सर्कलिंग ट्रैक की तरह घूम रहा है तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कब तक ऐसे बंधे रहोगे कैसे बंदी बन के आप रहोगे और ये जगत है एक अनंत जगत है और आप जैसे एक जो चल रहा है इधर एक अभी यात्रा वो मतलब बोल रहे हैं कि जैसे पेटी एडवेंचर तो बोल रहे हैं कि ये अर्थबन रेस जो है जैसे फेट ड्रिवन वो भाग्य की तरह परिचालित हो रहा है तो एक आह्वान जैसा है कि आपको एक ऊर्ध्वतर चेतना को उठना है तो बहुत सुंदर तरीके से वो एक्सप्रेस हुआ है इस पेंटिंग में मुझे सावित्री पेंटिंग का अनंत आनंद को मेक करछि एटा अनंत मु जो रोज हमर सौरमंडल ताको मु देखिछि और पावर को भी देखिछि अनंत तो मु बटरफ्लाई नेछि हैप्पीनेस को नेछि आदि पर पेंटिंग करछि दिव्य आलोक पृथ्वी पृष्ठ पड़ছে সেটা ମୁଁ ଦେଖିଛି तो दुई दिन जो हमर स्पिरिचुअल पेंटिंग बोले था आम तो पेंटिंग करूँ टाइम देखू 10टा पॉइंट सेकेंड टाइम फोन बाहर कर देखला कि 3टा 4टा जना पड़े इन टाइम एटी बहुत भल एक्सपीरियंस सेटा भाई फील जहाँ भी मैं एक्सप्रेस करि पारली जो फीलटा मैं नेची बहुत भल लगा ये फोर्स जो था हमारे 4 लाइन्स में
वो एक मुझे टच किया फोर्ट्स, तो वही उसको लेकर मैं ये बनाई हूँ। लाइक डिवाइन फोर्स हम फोर्स कर रहा है ऊपर जाने के लिए। एंड जब मैं आज बना रहा था तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था, लाइक मतलब सब ब्लैंक आ रहा था मेरे पास, और जस्ट आई फोकस्ड ऑन इट। जस्ट मैं इसके अंदर ही चला गया था, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। एंड जब ये कंप्लीट हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बनाकर। एंड आई हैव नो suitable words to explain about this. Just it's just touched my hands. Thank you. आप सबको श्री माँ और श्री अरविंदो उनको नमन करते हुए, और आप सबको मेरी तरफ मेरा प्रणाम। इट इज़ मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो एक सच हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मैं यहाँ फैसिलिटेट करने आई थी, लेकिन यहाँ तो मुझे खुद बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ आप लोगों से मुझे सीखने को मिला है। ये इट वाज लाइक कलेक्टिव एस्पिरेशन, कलेक्टिव एनर्जी, और वो ऐसा लगा कि इसका जो पावर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा, अभी तो मैं आर्टिकुलेट भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ भी हो, स्टार्टिंग से लेकर विश्वजीत भैया जब से बातें किए तब से मतलब अभी तक, मतलब ऐसे लग रहा है कि मेरे को ब्लेसिंग्स बौछार हो रही है मदर से। इट्स लाइक आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड एट द सेम टाइम वेरी हम्बलिंग, बिकॉज यहाँ पे आप लोग का जो प्यार है ना, मतलब आर्टिस्ट तो है ही, आर्टिस्ट है, लेकिन वो जो प्यार जो सबके अंदर से, जैसे आई कैन फील दैट पावर, दैट लव, दैट वो जो है ना, वो तो बियॉन्ड वर्ड्स। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। ये पहली बार मैं आई हूँ यहाँ उड़ीसा में। सुनते रहे हम, जब भी हम ऑरेबल पौंडीचेरी जाते हैं, मुझे पता वहाँ के मैंने बहुत लोगों से मिला है, उनका यहाँ गांव है कहीं है, और उनको मुझे पता है कि बहुत लोग, मतलब वी हैव बीन हियरिंग दैट यहाँ श्री माँ का बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब बहुत लोग हैं यहाँ उड़ीसा से करके, मुझे पता था। लेकिन पहली बार मुझे अनुभव हो रहा है कि यहाँ आप लोग का इतना प्यार, इतना माँ को, मतलब आप तो यहाँ पौंडीचेरी यहाँ आ गया ऐसे लग रहा है। बहुत ही इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। अब ये पेंटिंग तो ठीक है, जो भी पेंटिंग करते हैं जजमेंट नहीं करना है, माँ को ऑफरिंग कर दिया सो अच्छा है बुरा है ये नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं भी नॉट जजिंग माई पेंटिंग। लेकिन हाँ, मुझे एक्चुअली एक्रेलिक का इतना ज़्यादा स्किल नहीं है जितना थोड़ा वाटर कलर का है, ऑयल पेंटिंग का है। तो एक्चुअली यहाँ मैंने अपने आर्टिस्ट से भी अनुरोध किया था कि थोड़ा आप मेरा फिनिशिंग कर दिए, मेरा फिनिशिंग नहीं आ रहा है। बट द वर्ड्स आर लाइक, वही एक हमारा जो ग्रुप में था, इट वाज लेस जस्ट द मेडिटेटिव स्पिरिट ऑफ दिस, ये वी आर अ पीस ऑफ द सेम मदर। हम यहाँ हैं लेकिन वी आर ऑल पोर्शन ऑफ दाई सेल्फ, वी आर हियर बट वी आर अ पोर्शन ऑफ दाई सेल्फ करके एक लाइन था बस। तो हम हैं लेकिन हम उस सुप्रीम पावर के ही हम भी एक छोटे से अणु हैं बस। वही मैं डिपिक्ट करना चाह रही थी, और समय इतने कम समय में मेरे से इतना ही हुआ, तो इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग सम पीपल हु कैन डू द फिनिशिंग अगर कुछ करना है। एंड वो तो पेंटिंग, बट एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिंग, कलेक्टिव पेंटिंग बहुत अच्छा लगा। इट इज़ अच्छा लगा है, इज़ वेरी छोटा सा वर्ड, इसको हम और आगे ले जाना चाहिए। इसको यहाँ से ही पहला स्टेप है, इसको आगे हम चलते किस तरह हम और एस्पायरेंट जो भी हैं थ्रू पेंटिंग, साधना थ्रू पेंटिंग अगर हम कर सकते हैं, वी कैन कम टुगेदर एंड कलेक्टिवली लेट्स डू समथिंग आगे चल के।
अभी जल्दी माँ का 150th बर्थ एनिवर्सरी भी आ रहा है, कुछ कर सकते हैं। अब है विश्वजीत भैया, करेंगे कुछ। देखते हैं, ठीक है। थैंक यू विश्वजीत, इनसे, इनके मम्मी पापा, इनके नाना जी, और जब देखो कोई ना कोई कनेक्शन है, सब दादाजी है, मतलब आई मीन ऑल दोज रिलेटेड। फिर कजन है, फिर छोटा सा अपना द्युमन है, प्यारा सा, मुझे वो भी एंड गोइंग बैक विद सो मच ऑफ, माई हार्ट इज रियली फुल ऑफ आप सबका जो प्यार है ना, वो बहुत अंदर से ना, वो एकदम ग्लो हो रहा है इसी तरह। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। हम सबके तरफ से आप बोल सकते हैं दीदी को अशेष अशेष धन्यवाद। The Divine Mother and Lord Sarvina. I am very happy and grateful. Then all the campus, they adjusted our place, food, time, etc. The school students are making noise also during yesterday. They are schooling. Then I am so much grateful, thankful before the Mother, and I pray for your progress for the divine work that Sri Aurobindo belongs to future. Thank you all. It was the most beautiful aspect I have observed since a long time. So it felt less like conducting a program and more like collective sharing of a journey of creativity and conscious connection with our inner being. The atmosphere of Gopinathpur, inspired by the vision of the Mother and Sri Aurobindo, added a quiet depth and sincerity to the entire experience. There was so much of warmth and love around, and I felt that warmth and love so much. It was so beautiful. It left me asking for more. I can't thank enough to the organizers, to Aura Kalakriti, who invited me and took all the pains to make my stay and everything so comfortable, with so much of love and joy and warmth. Deeply, deeply in gratitude to all of you. Thank you so much.